Hello students, I am Anubha Pandey. Welcome to YouTube channel of Science Zoom. In our previous video of surface areas and volume, we have discussed 6 shapes: cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and hemisphere. We have also studied how the formulas for their curved surface area, total surface area and volume are achieved. Also, we have learned a few tricks to remember those formulas. If you have not watched that video, then you can get the link of that video by clicking on I button. In this video, we will discuss what is a frustum of cone, how to derive formula for curved surface area, total surface area, volume and slant height of frustum of cone. So let's start our video, but before that, please subscribe to our channel so that you get notifications about all the newly uploaded videos. Cone. Before starting today's topic, let's revise what is a cone. A cone is a 3D solid which has one apex, one lateral surface and one circular base. The radius of base of the cone is represented by r. Height of the cone is the perpendicular distance between the apex of cone and center of its base. Slant height, represented by symbol L, is the length of the line segment which joins the apex and a point on the base of the circle. L, H and R together form a right-angled triangle. The formula for curved surface area of cone is pi r L. Formula for total surface area of cone is pi r into L plus r. Volume of cone is given by the formula 1 by 3 pi r square h. Slant height L of cone is given by formula square root of h square plus r square. Frustum of cone. Frustum is a Latin word which means piece cut off. If a cone is cut by a plane parallel to its base, then it is divided into two parts. The upper part of that cone is conical in shape, and the lower part, that is the part between the base of that cone and parallel plane, is called frustum of cone. The frustum of cone have one lateral surface and two circular bases of different radii. The height of frustum of cone is the length of the line segment joining the centers of both the bases of the frustum. The slant height of frustum of cone is the length of the line segment which joins endpoints of the two parallel radii, one on each base of the frustum. A thermocol cup, a bucket, cap worn by Turkish men, that is fez, are few examples of frustum shape. Formula for curved surface area of frustum of cone. Let us have a cone ABC with O as its center of base. Its height is represented by symbol capital H and its radius be capital R. And let's assume its slant height AC is equal to capital letter L. Now, if it is cut along a point O dash on its height AO, then we will get two parts, a cone ADE and a frustum DECB, such that the radius of the base of conical part is lowercase r. Now, if we assume the slant height of the frustum EC is equal to lowercase l, then the slant height of the conical part, that is AE, will be capital L minus small l. And if the height of the frustum, that is O dash O, be lowercase h, then the height of the conical part will be capital H minus small h. Now, if we have a cone 1
and its upper part be cone 2, and we find the difference between the curved surface areas of 1 and 2, then the remaining answer will be the curved surface area of frustum of cone. Now, in our case, we have a cone ABC which is divided into two parts, cone ADE and frustum DECB. अब अगर हमें फ्रस्टम DECB का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सब्ट्रैक्ट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ADE. अब इसी रिलेशन का यूज़ करके हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं? ABC का और ADE का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. दोनों क्या हैं? कोनिकल इन शेप हैं, एंड वी नो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई आर एल. इन केस ऑफ ABC, कैपिटल R is its radius and capital L is its slant height. So, the curved surface area of cone ABC will be pi capital R into capital L. Whereas, in the case of ADE, the radius is lowercase r and the slant height is capital L minus small l. So, the curved surface area of ADE will be pi lowercase r into capital L minus small l. अब जो वैल्यूज़ मिली हमें CSA ऑफ ABC और ADE की, उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा? CSA ऑफ फ्रस्टम DECB इज इक्वल टू पाई कैपिटल R L माइनस पाई लोअर केस r इंटू कैपिटल L माइनस लोअर केस l. अब ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं. पाई r विल गो इनसाइड द ब्रैकेट एंड वी विल गेट पाई कैपिटल R कैपिटल L माइनस पाई लोअर केस r कैपिटल L प्लस पाई आर लोअर केस एल. ठीक है. अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं, पाई कैपिटल R कैपिटल L एंड पाई लोअर केस r कैपिटल L, इन दोनों टर्म्स में कैपिटल L और पाई आर टू कॉमन थिंग्स. तो हम फर्स्ट टू टर्म में से पाई कैपिटल L कॉमन ले लेते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? पाई कैपिटल L इंटू कैपिटल R माइनस लोअर केस r प्लस पाई आर L. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है उसमें केवल कैपिटल L एक ऐसी टर्म है जो फ्रस्टम का पार्ट नहीं है. कैपिटल R लोअर केस r फ्रस्टम के बेसिस की रेडियाई हैं, लोअर केस L फ्रस्टम की स्लैंट हाइट है, पाई तो एक कांस्टेंट होता है ना. अब अगर हम किसी तरह इस L को रिप्लेस कर दें विद समथिंग लाइक लोअर केस L और द रेडियाई, उनके फॉर्म में अगर हम उसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो केवल फ्रस्टम के पार्ट्स को इन्वॉल्व करके मिलेगा. सो वी कैन से दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. ठीक है. तो अब इस L को रिप्लेस करने का ट्राई करते हैं. अब L को रिप्लेस हम कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं AOC एंड AO'E और इन दोनों में सिमिलैरिटी प्रूव करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा. अगर हम देखें जो ट्राइंगल AO'E और ट्राइंगल AOC हैं उसमें एंगल AO'E और एंगल AOC ये दोनों इक्वल होंगे. क्यों? बिकॉज जो हमारा फ्रस्टम बनता है वो पैरेलल टू द बेस कट करते हैं तो ही बनता है. तो देयरफॉर O'E विल बी पैरेलल टू OC. एंड एज वी नो हमारे सिलेबस में हम केवल राइट सर्कुलर कोन्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल होगा AO'E एंड AOC दे विल बी राइट एंगल्स. सेकेंडली, द एंगल A in both the triangles is common. Angle O'AE and angle OAC both are the same angles. So by angle criteria we can say triangle AO'E and AOC are similar. Now if these two triangles are similar, then their corresponding sides will be in same proportion. Hence we will get the result AO' upon AO equal to O'E upon OC equals to AE upon AC. AO' is capital H minus small h, AO is capital H
O dash E lower case r, OC upper case r. AE capital L minus lower case l and AC is our capital L. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट. दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे भी यूज होगा टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. एंड जब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब भी हम सेम यही रिजल्ट यूज करेंगे. हमने सिमिलैरिटी इसलिए प्रूव की थी ताकि हम कैपिटल एल की कोई वैल्यू फाइंड कर सकें और उसको हमारी मेन जो फॉर्मूला है उसमें रिप्लेस कर सकें. ठीक है. तो अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिली, इसमें हम एक काम करते हैं, जो लास्ट की दो रेशियोज हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं और उससे हम कैपिटल एल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट वी विल ऑब्टेन बाय सॉल्विंग दीज टू रेशियोज. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल एल एंड कैपिटल आर विल गेट मल्टीप्लाइड विद कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल. तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कैपिटल एल माइनस लोअर केस एल कैपिटल आर. अब एक काम करते हैं, जो कैपिटल एल वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं. दोनों कैपिटल एल वाली टर्म्स को हम RHS में ले जाते हैं. तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? लोअर केस एल कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कैपिटल एल माइनस कैपिटल एल लोअर केस आर. अब जो ये दो टर्म्स मिली हमें, इनमें से हम L कॉमन ले लेते हैं और वहीं से हमें कैपिटल L की वैल्यू मिल जाएगी. कैपिटल L विल बी इक्वल टू लोअर केस L कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस लोअर केस R. अब देखिए इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं, लोअर केस L कैपिटल R लोअर केस R, ये तीनों जो हैं हमारे फ्रस्टम के ही पार्ट्स हैं. ठीक है. तो अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर फाइंड की थी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी विल ऑब्टेन दिस रिजल्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल. इन दिस केस वी कैन क्लियरली सी कैपिटल आर माइनस लोअर केस आर विल बी कैंसल्ड विद कैपिटल आर माइनस लोअर केस आर. सो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा? पाई कैपिटल आर लोअर केस एल प्लस पाई लोअर केस आर लोअर केस एल. इन दोनों ही टर्म्स में पाई और लोअर केस एल हम कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ से हमें फॉर्मूला फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन मिल जाएगा. दैट विल बी पाई कैपिटल आर प्लस लोअर केस आर मल्टीप्लाइड विद लोअर केस एल. फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. किसी भी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेसिस ऐड करने पड़ते हैं. In the case of frustum, we have two circular bases. Let's assume the base of frustum is a circle with center O and radius OC, and the radius OC is equal to capital letter R. And another base of the frustum or its top be a circle with center O dash and radius O dash E, which is equal to small letter r. Then the total surface area of frustum of cone will be equal to the sum of CSA of frustum, area of circle with center O radius OC and area of circle with center O dash and radius O dash E. CSA of frustum is given by formula pi into sum of the radius into slant height, and the area of circle is given by pi r square. Area of base will be pi capital R square and area of top will be pi small r square. Therefore, the formula for total surface area of frustum of cone will be equal to pi capital R plus small r into L plus pi capital R square plus pi small r square. फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी हम वही रिलेशन यूज करेंगे जो हमने CSA को फाइंड करने के लिए किया था. हमने CSA कैसे फाइंड किया था? CSA ऑफ कोन ABC माइनस CSA ऑफ कोन ADE. सेम वे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी हम वॉल्यूम ऑफ ABC में से वॉल्यूम ऑफ ADE सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
ABC, ADE, again they are cones. Volume of cone is given by the formula 1/3 pi r square h. In case of ABC, the radius is capital R and the height is capital H. Whereas in the case of ADE, the radius is lowercase r and the height is capital H minus small h. So the volume of cone ABC will be 1/3 capital R square capital H, and volume of cone ADE will be 1/3 lowercase r square into capital H minus lowercase h. अब ये वैल्यूज हम हमारे रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम DECB इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H वॉल्यूम ऑफ कोन ABC माइनस 1/3 लोअरकेस r स्क्वायर इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन ADE. अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं. इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा. इस रिलेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में पाई और कैपिटल H दोनों कॉमन आता है. हमें रिलेशन मिल जाएगा 1/3 पाई कैपिटल H इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस लोअर केस R स्क्वायर प्लस 1/3 पाई लोअर केस R स्क्वायर इंटू लोअर केस H. अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे रिलेशन में एक कैपिटल H ही ऐसी टर्म है जो हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन का पार्ट नहीं है, तो इस कैपिटल H को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. हम कैसे रिप्लेस करेंगे? अगेन वी विल गो टू द रिलेशन 1 जो हमने CSA ऑफ कोन के टाइम पे फाइंड आउट किया था. सेकेंड थिंग, हमारे पास यहाँ पे है कैपिटल R स्क्वायर माइनस लोअर केस R स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं. सो पहले हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा 1/3 पाई कैपिटल H इंटू कैपिटल R माइनस लोअर केस R मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R प्लस लोअर केस R प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल H. कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स से जो रिलेशन मिला था उसको हम यूज करेंगे. फ्रॉम दैट रिलेशन वी गॉट टू नो दैट द ratio of capital H minus small h upon capital H is equal to lowercase r upon capital R. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल R will get multiplied with capital H minus small h which will be equal to lowercase r into capital H. ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. ब्रैकेट ओपन करने से हमको मिलेगा कैपिटल R कैपिटल H माइनस कैपिटल R लोअर केस h इक्वल टू लोअर केस r कैपिटल H. इसमें से हम अगर देखें तो दो टर्म्स में हमें कैपिटल H मिल रहा है. सो कैपिटल H वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं. दोनों टर्म्स को हम LHS पे ले आते हैं. अब इन दोनों टर्म में से कैपिटल H कॉमन ले लेते हैं. हमारा मेन एम क्या है? हमें ये कैपिटल H जो है उसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और हमें फाइनली वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला फाइंड करना है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम कैपिटल H की वैल्यू निकाल लेते हैं. H को कॉमन ले लेते हैं, जो भी बचता है उसको RHS में भेज देंगे. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा H इज इक्वल टू कैपिटल R लोअर केस H अपॉन कैपिटल R माइनस लोअर केस H. अब ये जो वैल्यू हमें H का मिला इसको हम हमारे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम DECB इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू द वैल्यू ऑफ H जो हमने अभी यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 1/3 पाई लोअर केस R स्क्वायर H. अब यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r एंड कैपिटल R माइनस स्मॉल r विल गेट कैंसल्ड आउट. सो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 1/3 पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल R प्लस लोअर केस R इंटू H प्लस 1/3 पाई लोअर केस R स्क्वायर लोअर केस H. अब इन दोनों टर्म्स में 1/3 पाई और H दोनों टर्म्स में कॉमन है. ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है कैपिटल R इंटू कैपिटल R प्लस लोअर केस R, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले एक काम करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1/3 पाई H कॉमन ले लेंगे. जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा? 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई कैपिटल R लोअर केस R
लोअर केस h प्लस 1/3 पाई लोअर केस r स्क्वायर लोअर केस h। अब इन तीनों टर्म्स में से 1/3 पाई और लोअर केस h को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो होगा 1/3 पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R लोअर केस r प्लस लोअर केस r स्क्वायर। This is the formula to find volume of frustum of cone. Formula for slant height of frustum of cone. Let's draw a line AB to find formula for slant height of the frustum. AB is a line segment parallel to the line segment joining the centers of the frustum, that is height of the frustum. So the length of AB will be h. BC will be the slant height and AC will be equal to OC minus O dash B, because AB is parallel to O dash O and O dash O and AB both are perpendicular to OC. Therefore AC is equal to capital R minus small r, that is the length for AC. Now triangle ABC is a right angle triangle. If we apply Pythagoras theorem in triangle ABC, we will get BC square equals to AB square plus AC square. BC square is equal to L square, AC capital R minus small r, and AB is equal to h. So let's substitute the values in this equation. We will get L square equals to h square plus capital R minus small r square. Now to find the value of L, we have to do square root on both the sides. So slant height of frustum of cone is equal to square root of the sum of the square of height of the frustum and the square of the difference between the radii of the frustum. So students, that's all for this video. In this video, we learned how to derive the formula for curved surface area, total surface area, volume, and slant height of frustum of cone. In our next video, we will discuss some problems based on combination of solids. I hope this video is helpful for you. If you like our video, please click on the like button. Share this video among your friends and don't forget to subscribe to our channel. And feel free to drop a comment in the comment section regarding any doubt or suggestion. So students, see you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.